Hello student, I am Pradeep Kant Pachori, Assistant Professor at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Dear students, now we are going to discuss about an introduction of human anatomy and physiology. First of all, what is human anatomy and physiology? Anatomy और physiology होती क्या है? It is the branch of science, anatomy and physiology, that provide the foundations for the understandings the body parts and functions. And the anatomy, it is the science of body structures. Anatomy का मतलब होता है structures. ये एक ऐसी साइंस है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बताती है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस शेप का बना हुआ है, and deals with the relations between the body parts. It is known as anatomy. And physiology, it is the science of body functions. Physiology means functions. It is the physiology of the body organs, living organisms. It's known as the functions of the body and known as physiology. And some of the subspecialty of the anatomies like cell biology, embryology, regional systematics, and body systems. Body systems are structures, and the physiology of some specialties like the neurophysiology, cardiovascular physiology, respiratory physiology, renal physiology, pathophysiology, and the many types of the subspecialties included in the anatomy and physiology. And 11 systems involved in our body, human body, like skeletal systems and integumentary systems, muscular systems, cardiovascular systems, lymphatic systems, respiratory systems, and urinary systems, reproductive systems, and 11 systems included in the human bodies. So now, the 12 chapters included in the syllabus as per the PCI in diploma first year. The first chapter is scope of anatomy and physiology. Anatomy and physiology का scope कहाँ है, कहाँ उनका use होता है, क्या उनके functions होते हैं, क्या उनका structures होता है. तो point is anatomy and physiology already defined, and under the scope of anatomy and physiology, cell. Cell is a basic unit functional of the body. एक सेल ही एक ऐसी सिंगल यूनिट है जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ, एंड और मैनी गोल्जी apparatus. तो सेल इज बेसिक फंक्शनल यूनिट्स डेवलप द बॉडी पार्ट्स और बॉडी. Second chapter, elementary tissues. Tissues, the group of cells is known as tissues. बहुत सारे सेल से बनकर tissues बने होते हैं, and there are 4 types of tissues present in our body. First is the epithelium tissues, second is the muscular, third is connective, and fourth is nervous tissues. इन सारे टिश्यूज से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, बनी होती है, फंक्शन करती है. एंड थर्ड चैप्टर स्केलेटल सिस्टम. इस सिस्टम्स के अंदर स्केलेटल मीन्स बोन, हड्डी, जो हमारी बॉडी की एक बनावट है, एक स्केलेटन है, मानव कंकाल, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसके अंदर इस चैप्टर में हम जॉइंट एंड डिसऑर्डर
मीन्स आर्टिकुलेशंस ऑफ बोन, बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारे मूवमेंट में काम करती हैं, और उनके डिसऑर्डर्स लाइक गाउट, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो। एंड फोर्थ चैप्टर इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम्स के अंदर ये कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और वास्कुलर मीन्स होती हैं ब्लड वेसल्स। ये सिस्टम हमारा हार्ट और ब्लड वेसल से बना होता है। इसके अंदर हम हार्ट पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, एंड lymph glands, lymphatic systems, blood vessels carry clear fluids is known as the lymph into the blood. And the fifth chapter is respiratory system. Respiratory system also important in our body functioning. Respirations starting from nose and end the lungs. Life parts is nose, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sacs and lungs. इसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम सांस बाहर निकालते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एलिमिनेशन होता है, वो सारी चीज़ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सिक्स्थ चैप्टर इज यूरिनरी सिस्टम. Urinary system, the parts is kidney, urinary formations and disease in animal. इस सिस्टम के अंदर इसका जो मेजर ऑर्गन होता है उसे हम किडनी कहते हैं, जो कि हमारे वाटर का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिन को बनाती है, और वेस्ट जो वाटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक नेफ्राइटिस, किडनी डिजीज। एंड द सेवेंथ चैप्टर इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी मसल्स, contractions, relaxations connected with the bones and body organs, ये हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, हमारे स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक स्टिमुलेशन कंडीशन में हो। लाइक स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन से जुड़ी हुई मसल्स हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जिनका न्यूरॉन्स रिलेटेड, जो हमारे मस्कुलर पॉइंट पर जाके एक्शन करते हैं, न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। एंड द चैप्टर इज 8th, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारा एक मेन सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जिस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा हेड, ये पूरा हमारा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर। इसके अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एएनएस. एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में काम करता है. एग्जाम्पल, जब भी हम कोई वर्किंग कंडीशन में होते हैं, इट मीन्स फाइट एंड फ्लाइट मोड. एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क इन रेस्ट कंडीशंस लाइक स्लीप एंड सिट. या आप सोए होते हैं या आप बैठे हुए होते हैं. 9th चैप्टर इज सेंसरी ऑर्गन्स.
In these chapters, like taste, smell, ear, eye, skin, and physiology of pain. इस सेंसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनसे सेंसेशन हमें फील होती हो, हम बहुत सारी चीज़ों को फील कर पाए। जैसे कि पहला पॉइंट है टेस्ट। हमारी टंग होती है, हम टंग के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि खट्टा है, मीठा है या बिटर है, सॉल्टी सॉल्ट, तो मीन्स सेंसेशन। स्मेल, नोज के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी है या बुरी है। ईयर, सेंसेशन, ये ऐसा सेंसरी ऑर्गन है, हम सुनते हैं, कोई भी आवाज देता है तो हमारे कानों में सुनाई देती है, ब्रेन को मैसेज जाता है। एंड आई, हम देखते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। इन सब के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमें पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमने कुछ देखा, सुना, खाया, वो सब मैसेज जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। कौन ले जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। और उन्हें वापस इफेक्टिव बनाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। एंड स्किन, ये हमारा एक बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, सेंसेशन। सपोज दैट यहाँ किसी ने बाइट किया हैंड पे, बाइट करने के बाद जो हमें पेन होता है, उस पेन का फंक्शन कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि हमें यहाँ पेन हुआ। जब भी हम बाइट करते हैं, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स या रिसेप्टर्स बैठे होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज करते हैं कि आप इस पेन को यहाँ से ब्रेन के लिए ले जाओ। तो सेंसरी न्यूरॉन्स उस पेन को ब्रेन के लिए ले जाते हैं और ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा उसी इफेक्टिव पे वापस भेजता है। तब हमें पता लगता है कि हमें यहाँ पर पिंच हुआ है, पेन हुआ है। 10 chapters, digestive system. It is the most important system of the body. हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, डाइजेशन है, starting from the mouth to the anus. The organ parts like esophagus, stomach, pancreas, liver, small intestines, large intestines, and the digestive systems. 11th chapter is endocrine system. Under the endocrine systems like glands, hormones, pituitary, thyroid, adrenal, and pancreas. Endocrine systems release hormone into the blood stream. ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिससे हमारी सेल के जो भी ग्रोथ, फंक्शनिंग्स, मूवमेंट, जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी को जो रेगुलेट करते हैं, दे हेल्प इन द रेगुलेट द बॉडी कंट्रोल। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्शन, मूड, etc. And the last one, reproductive system. Reproductive systems, there is two types, male reproductive system and female reproductive system. Male and female reproductive, male reproductive system, spermatogenesis, स्पर्म का बनना वो कैसे प्रोसेस होता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, oogenesis, ओवम का बनना. This is all about the reproductive systems, and it is the introductions of human anatomy and physiology, all in your syllabus, and all about the human anatomy and physiology. Thank you.